Hello dear students, good morning to all of you. In this video we will start a new chapter number 12. Chapter 12 electricity. ठीक है. So in this chapter we will discussing about the electricity. What is electricity? Electricity is a flowing of current and flowing of charges. Okay. From the conductor by through the potential difference is known as electricity. Okay, so let's see step by step definitions of the electric current and the electric circuit. Okay, if an electric charge flow through, electric charge मतलब the electrons. Okay, what is electric charge? Electric charge is a electron in a elements. ठीक है, elements क्या क्या होते हैं? Just like copper, iron, silver. They conduct electricity. ठीक है, so they having a free charge electrons. ठीक है, when you draw the energy levels of the copper by through the electron dot structure, you get free electrons in the outer side of the elements. ठीक है, outer side जो elements होते हैं उसके जो outer most जो cell होता है they have a free electrons. आयरन में देख लो, सिल्वर में देख लो, ठीक है, कहीं पर भी देख सकते हैं. यू कैन सी दैट देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a millions of number, just like this is a copper metal wire. Okay, and in this there is a free electrons. When we applied potential difference on this side, that means the free electrons are using this carrier to flow onto the next region, and they reaching from this region to this region by through the electrons. Okay, as a carrier. So this is conduct by through the conductor. Okay, conductor मतलब क्या होता है? ऐसी elements, the elements which having the flowing of current from the upper side. ठीक है, मतलब in a cross section, मतलब cross section मतलब होता है उसके जो पूरा ये जो वायर है, ठीक है, वायर के अंदर और वायर के ऊपर नीचे सभी जगह से, that is known as cross section. तो cross section से जो flow of charge को flow कर देते हैं, that is known as electric current. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एट द टाइम वी कैन से दैट इट इज अ फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ओके डियर स्टूडेंट, करंट मींस दैट फ्लोइंग ऑफ समथिंग, जस्ट लाइक एयर करंट. एयर करंट मतलब हवा का बहना. ठीक है, दैट इज नोन एज एयर करंट. वाटर्स का बहना, ठीक है, पानी का बहना, दैट इज नोन एज एयर वाटर करंट. ओके, सो सेम लाइक एज अ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज electric current. Okay dear students, so this is a definition of electric current. Okay, and electric current can be expressed by as in the form of, ये भी आप साथ में लिख लेना, I is equals to QT. Okay, ये भी आप इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के साथ लिखेंगे. I that means in a unit time the number of charges flow. Okay, that is known as electric current. It can be expressed by I. electric current को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? electric current is can be expressed by I. ठीक है, when we talking about how much amount of current is flow in a unit time by through the any cross section of any conductor. ठीक है, तो we can say that it is the amount of flowing of charge in a per unit time, that is known as current. Okay dear students, so ये हो गया करंट का डेफिनेशन by through the expression. ठीक है, this can be expressed by the I, and I को जो होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ इसके बाद नेक्स्ट में. ठीक है, ये इतना आप अभी याद रख लो. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं. घर में सभी को पता है टॉर्च है. ठीक है, तो टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब लगी होती है.
क्या लगी होती है, एक बल्ब लगी होती है, ठीक है। इस बल्ब में क्या होता है, दो बैटरीज जुड़ी रहती हैं, जस्ट लाइक हम लोग क्या लेते हैं, जो बड़ा वाला जो साइन होता है ये प्लस का होता है, और जो छोटा वाला जो साइन होता है वो माइनस के लिए होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस बल्ब को एक स्विच से, स्विच का ये सिंबल होता है स्विच का, ठीक है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहां से। क्या होता है, जब स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, जो इसके दोनों टर्मिनल्स होते हैं ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्लोइंग ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, स्विच को हम लोग इस तरफ भी लगा सकते हैं, दैट्स डजंट मैटर, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, स्विच जो है वो ये ऐसा है, दैट मीन्स ये ऑफ है अभी, ठीक है। जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, दैट मीन्स इट इज ऑन, ठीक है। तो ऑन करते हैं, दैट मीन्स बल्ब इज ग्लोइंग, when switch was on, ठीक है, bulb is glowing, so there is a continuous path, there is nothing is broken, okay, that means bulb is glowing when switch is on, so this path is known as electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। Now, okay, this is a closed path that is known as electric circuit, ठीक है, and there is a K is a switch, K is a switch, and this is ammeter, okay. How we measure current? Current is measured by the instrument that is known as ammeter. एमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है। जो एमीटर होता है वो क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है इन अ सर्किट, एंड बाय थ्रू दिस वी कैन काउंट हाउ मच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट, ओके। एंड वी हैव अ फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द करंट सेट, करंट इज अ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। जो फ्लोइंग ऑफ क्या बोलते हैं, चार्ज होता है एक यूनिट टाइम में, वो क्या होता है, दैट इज नोन एज करंट, ठीक है। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ओके। इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। या फिर यही भी बताता हूं आपको थोड़ा। The current is flowing from positive terminal to negative terminal, ठीक है। जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसके जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लोइंग ऑफ करंट डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज होंगे वो इस साइड से फ्लो होना शुरू होगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ओके डियर स्टूडेंट। तो फ्लोइंग ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट कैन बी कैलकुलेट बाय थ्रू द I इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q इज डिनोटेड बाय चार्ज एंड SI यूनिट ऑफ Q Q is denoted as a electron charge and SI unit of Q is coulomb, okay, and it can be denoted as a C, capital C. I is a current and its SI unit is ampere and it can be denoted as a capital A, okay, and T is a
unit time. So at the time we can say that it is founded by the French scientist Andre Marie. SI unit of electric charge is electric charge. It is denoted by Q, and SI unit of electric charge is 1 is coulomb. It can be denoted by C, okay, and 1 coulomb is equals to 6 into 10 the power 18 electrons चार्ज। ठीक है, 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं वहां पे। ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, is 1.6 into 10 the power minus 19। ठीक है, इतने चार्ज होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में। 1 कूलॉम में कितने चार्ज होते हैं? ये चार्ज होते हैं 10 the power, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलॉम चार्ज के अंदर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 the power minus 19। When we talking about 1 ampere of current flow by through the 1 coulomb of charge in a 1 second, okay, 1 सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो होते हैं that is known as 1 ampere of current, okay। तो 1 ampere की कितनी वैल्यू होती है? Flow of 1 coulomb of charge in a 1 second in a unit, in a cross section of the wire, so that is known as 1 ampere of the current, okay। There is a small current also। ठीक है, कौन कौन से करंट होते हैं? स्मॉल करंट्स आर, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज होती है, इस वैल्यू से कम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर ऑफ करंट, एंड स्मॉल करंट लिख लेंगे यहाँ पे, एंड 1 माइक्रो के लिए ऐसा साइन बनाएंगे। ठीक है, माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, और इससे भी अगर छोटी वैल्यू आएगी तो -3 उसमें और कम कर देंगे तो वो उससे छोटी हो जाएगी। बस हमें इस लेवल में यहाँ तक पढ़ना है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कभी भी जो यूनिट टाइम होगा उसको हम ऑलवेज सेकंड्स में डिनोट करेंगे। कूलॉम के चार्ज तो इसमें दिया रहेगा। ठीक है, दैट्स नथिंग एट ऑल, ओके। कभी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्राइज्ड, ओके, कंप्राइजिंग हाउ, ओके, सो हाउ कैन यू से दैट? यू कैन से दैट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती है वहां पे? सबसे पहले तो वहां पे एक बल्ब था, ठीक है, एक बैटरी, स्विच, वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बैटरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं यहां से। ठीक है, स्विच हो गया, वायर, स्विच इज आल्सो नोन एज प्लग की। So this is by through the electric circuit is comprised. Okay, dear students. So numerical is the now is numerical here. Okay. So according to this, a current of 0.5 ampere. Okay, given a solution. Okay. A लिखा हुआ, that means current I is equals to 0.5 ampere. इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, फिलामेंट मतलब क्या होता है? जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर ऐसा कुछ बना होता है। ठीक है,
तो दैट इज नोन एज फिलामेंट विच इज ग्लोइंग, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स के लिए इसमें क्या होता है 0.5 एम्पियर ऑफ करंट जो होता है वो फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम इज t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स एंड वी नो दैट द वैल्यू इन I is equals to in ampere, Q is equals to in coulomb एंड t is equals to in a second, ठीक है। तो ये यूनिट आप बिल्कुल भी यहां से नहीं भूलना है इसको, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको अगर करंट फाइंड आउट करने को बोला तो एम्पियर में वैल्यू लिखेंगे, चार्ज अगर आप लिख रहे हैं तो कूलॉम में लिखना पड़ेगा, और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा हमेशा। तो इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, okay, that means 10 minute is equals to 10 into 60, that means 600 second, okay dear students, that means आप यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे और 600 सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को नोट करनी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने को बोला, चार्ज Q is equals to फाइंड आउट, वी नो दैट I is equals to Q by T, okay, put the value here, that means I की वैल्यू कितनी दी है 0.5 एम्पियर, okay, and Q is remaining here and 600 सेकेंड, okay dear students, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ से। That means ये हो जाएगा Q is equals to 0.5 into 600, ओके। इस पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 10 लिख लेता हूँ, that means ये हो गया, एंड that means Q is equals to 6 5 30 and 0, 600 coulomb charge in a 10 मिनट्स, ओके। तो ये इतने चार्ज जो होंगे वो फ्लो होंगे इन 10 मिनट्स बाय थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको क्यू नहीं दिया था, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटीज अगर दी हुई है तो उसमें से हमेशा आपको क्या करना है, थर्ड क्वांटिटीज निकाल लेना है। हमेशा याद रखना टी में हमेशा सेकेंड यूज होगा एंड क्यू के लिए कूलॉम यूज होगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स अगर आप नहीं लिखेंगे दैट मीन्स योर मार्क्स विल बी deducted. Now electric potential. Okay, see here, this is a water tub, and when it is horizontally placed on the surface of earth, that means the water is never flow anywhere, okay। जब तक ये पूरी तरह से फील्ड नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, the water is never flow to anywhere, okay, but when we connected here any another tub, that means is water flow from हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। जहां पर भी क्या होगी एनर्जी, जहां पर भी क्या होता है, जो लोअर एनर्जी या लोअर थिंग्स होती हैं वहां पर वो क्या होने लग जाता है, वो फील्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो तब तक फील्ड होते हैं जब तक वो क्या निकल लेते, वो एक दूसरे को इक्वल निकल लेते हैं। सो एट द टाइम वी कैन से दैट दिस इज अ पोटेंशियल, ठीक है। व्हेन दे हैव पोटेंशियल दैट मींस इट विल फील्ड आल्सो दिस थिंग्स, so that is a potential, same like that in a electricity also, सेम किस में होता है, ये चीजें सेम चीजें होती है ना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जस्ट लाइक हियर कॉपर, दिस इज कॉपर वायर, ओके। व्हेन वी आर गिविंग इन a the electrons are not moving by their self, ठीक है।
जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने सेल्फ से ये नहीं जान देते उस तरफ से सब, ठीक है। व्हेन वी कनेक्टिंग हियर सेल, okay, when we connected cell here, so at the time the current is flow and electron charge is flowing from the electron charge को किसी वजह से फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे इसमें, एंड इसके अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी I which is flowing, so this is by through the potential, electric potential। So what is electric potential? The electric potential by which the electrons move, or it is also known as electric pressure। प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ही क्या हो, यही होते हैं क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव्स होना, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एजिटेटेड मूड में आ जाते हैं वो, ठीक है, वो बढ़ने लग जाते हैं, फ्लो होने लग जाते हैं, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V and it can be said as the work done by charge, ओके। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Q एंड वर्क डन इज डिनोटेड बाय W एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V, ओके। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें क्या होता है, करंट जो होता है, करंट को कैसे बोलेंगे, इज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टर्म, वर्क डन टू यूनिट चार्ज टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि एक मैंने सिंपल से एक सर्किट बना लिया, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना एक यूनिट टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का एक डिफरेंस पोटेंशियल्स टू द गोइंग टू द अनदर पोटेंशियल इज सेड टू बी एज अ वर्क डन एंड कैरिंग अ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। SI unit of potential difference is volt, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट क्या होगा, वोल्ट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, पहले हमने लिख चुके हैं इसे, एंड वोल्ट इट इज फाउंड बाय द इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। अलेजेंड्रो वोल्टा ने इसे फाउंड आउट किया था, ठीक है। अलेजेंड्रो वोल्टा द इटालियन साइंटिस्ट, दैट इज वे इट्स नेम इज वोल्ट, ओके स्टूडेंट्स। वर्क डन denoted by W, capital W, and its SI unit is joule, okay।
जो वर्क डन होता है हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। एंड चार्ज की वैल्यू तो पता ही है आप सभी को, चार्ज इज कैपिटल डिनोटेड बाय C एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम। कैपिटल C। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, SI यूनिट्स ऑफ दिस ऑल थिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इट कैन बी आल्सो रिटन एज अ वोल्ट is equals to 1 joule and 1 coulomb। ओके, और भी इसको आप बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू this is the value of 1 volt and the potential difference is measured by voltmeter and it is always connected in a circuit parallel। ठीक है, जब हम लोग ये जस्ट लाइक एक बैटरी, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और यहीं पर ये अगर दिस इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो जो सर्किट में इन अ सर्किट पैरेलली, always connected in a circuit parallel across the points where the potential difference measured ठीक है। जस्ट लाइक हमें क्या करना है, इस बिटवीन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर लगा देना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच वर्क डन क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W। ओके, एंड गिवन है क्या क्या गिवन है, चार्ज Q is equals to 2 coulomb and V, okay, it's denoted by, it is given a 12 volt. So how we know that V is equals to W by Q. Put the value here. Electric potential is given 12 volt. Work done is nothing. Q is 2. That means, so how much work done is there? There is a work done is 24 joule. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम वर्क डन को निकाल रहे हैं तो वर्क डन इज डिनोटेड बाय